تلنگانہ میں محکمہ برقی کے ملازمین اور پینشنرز سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں۔ 70,585 ملازمین اور موظف حضرات نے ایک دن کی تنخواہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مسلسل چیف منسٹر ریلیف فنڈز میں عطیات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ برقی کے 70,585 ملازمین اور پینشنرز نے بھی اپنی ایک دن کی بنیادی تنخواہ جو کہ 18,69,00,000 روپے ہیں چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا۔ اسی سلسلے میں ایک وفد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور چیک حوالے کیا۔ چیف منسٹر نے اس موقع پر محکمہ برقی کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو سرکاری پروگراموں میں حصہ لینے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر محکمہ توانائی کے سیکریٹری سندیپ کمار سلطانیہ، ایس پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی مشرف علی و دیگر موجود تھے۔ نرمل ضلع کے بھینسا میں سوشل ویلفیئر بوائز ہاسٹل سے 4 طالب علم لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ کے سوشل ویلفیئر بوائز ہاسٹل سے طلباء کے لاپتہ ہونے کے واقعات وقفے سے سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ نرمل ضلع کے بھینسا سے سامنے آیا ہے، جہاں پر سوشل ویلفیئر بوائز ہاسٹل سے 4 طالب علم لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ شب طلباء کے درمیان لڑائی ہوئی، جس کے بعد چرن، راکیش، کیشو اور ایشور ہاسٹل سے فرار ہو گئے۔ اس بات کا علم ہونے کے بعد سے ان کے والدین پریشان ہیں۔ والدین نے شکایت کی ہے کہ ہاسٹل وارڈن کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے اننتا پور ضلع میں موسلا دھار بارش کے نتیجے میں سیلاب آ گیا، کئی علاقے ڈوب گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اننتا پور میں پیر کی رات کو موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں سیلاب آیا اور کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانڈمیرو ندی جو شہر سے متصل ہے، فی الحال تیزی سے بہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے دونوں اطراف کی کالونیاں زیر آب آ گئی ہیں اور سیلاب کے پانی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پریشان حال شہری اپنی چھتوں پر چڑھ کر مدد کے منتظر ہیں۔ امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے خصوصی مشنری کا استعمال بھی کیا گیا ہے، لیکن صورتحال نازک بتائی گئی ہے۔ AIMIM ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن میں VDCC کاموں کا افتتاح کیا۔ ریزیڈنٹ اسد الدین اویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن میں داؤد میاں مسجد کے قریب GHMC کی جانب سے انجام دیے جانے والے VDCC کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ SM ابرار، نمائندہ کارپوریٹر اعظم پورہ ڈویژن محکمہ بلدیہ کے افسران، EEAE اور مقامی لوگوں کے علاوہ سینئر قائدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ وفد ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ایک بار پھر تعطل کا شکار ہوا، شرکاء کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ وفد ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس منگل کو پارلیمنٹ میں شروع ہوا، لیکن عینی شاہدین نے بتایا کہ TMC کے رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی نے شیشے کی پانی کی بوتل اٹھا کر میز پر ماری اور خود کو زخمی بھی کر لیا۔ اجلاس کے دوران شرکاء کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے اجلاس کو روک دیا گیا۔ چارمینار ACP نے پیس کمیٹی کے اراکین اور پولیس عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا، شہریوں سے افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی۔ شہر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چارمینار ACP نے حسینی علم پولیس اسٹیشن میں ایک اجلاس طلب کیا، جس میں پولیس عہدیداروں اور پیس کمیٹی کے اراکین نے حصہ لیا۔ ACP نے امن و امان کی برقراری پر زور دیا ہے اور میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہونے والی خبروں کی تصدیق کریں، ان پر بھروسہ کرنے اور پریشان ہونے سے گریز کریں۔ شہریان حیدرآباد سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں تاکہ شہر کی گنگا جمنی تہذیب برقرار رہ سکے اور امن و امان بھی بحال رہ سکے۔ تھینک یو فار کمنگ۔ آپ لوگ کبھی بھی بلائے تو فرض آ جاتے اور ہمارا بہت ہیلپ کرتے، اس لیے
हम आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। अब जो भी चल रहा है, अभी ये सब तो बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ होने वाला है, जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मसला अब जो भी चीज़ है, खाली काम नहीं है सो आदमी वो काम नहीं रहता उन लोगों को। एक आदमी करने से सब लोग ये प्रॉब्लम फेस करते। कल भी एक छोटा मोटा इशू रेन बाज़ार में हुआ था। इसका मसला अपन क्या करेंगे बोले तो जरा बात कर लेंगे, एज ए फ्रेंड्स सर का बात कर लेंगे। ये फ्यूचर में काली फीली बोले तो काम नहीं है सो आदमी करने से सब लोगों को प्रॉब्लम में गिर जाता। ये छोटा काम करने से बड़ा इशू हो जाता। इसीलिए हमारा जो आप हमारा भाई लोग हैं और हम लोग आप जो भी है 24 आवर्स हमारा को हाथ में रहता है आप लोग, और हमारा को हेल्प करता है आप लोग। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन ये जो भी है आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। तो ये एक झूठ चीज़ को सही बता रहे, सही चीज़ को भी एक बार झूठ बता रहे। मेरा मतलब और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो हर एक आदमी बोले तो अभी मीडिया भी आया है और ये मीडिया भी हमारे को बहुत सपोर्ट करता है कभी भी। तो मीडिया से हम पब्लिक को और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता है, जो भी है चीज़ होने दो, कुछ होने दो, कुछ हो रहा, कुछ होने जा रहा, उसका वजह से कुछ। जॉइंट एक्शन कमेटी व तहरीक मुस्लिम शब्बान ने 29 अक्टूबर को यौम सियाह और मुस्लिम बंद मनाने का ऐलान किया है। गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी और उसे सख्त सजा देने का मुतालबा लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी व तहरीक मुस्लिम शब्बान मंगल 29 अक्टूबर को तेलंगाना मुस्लिम बंद व यौम सियाह मनाएगी। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इससे मुताल्लिक़ ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि गुस्ताख रसूल आज़ाद घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर सख्तियां बरती जा रही हैं। मोहम्मद मुश्ताक मलिक, कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी, ने कहा कि मलून गुस्ताख ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया वो मक्का के कुफार और यहूदी भी सरवर आलम के ताल्लुक से नहीं कहा करते थे। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत तमाशाई बनी हुई है, मुसलमान खाती की गिरफ्तारी और सख्त सजा तक एहतजाज करते रहेंगे। आपको बता दें कि पहले मरहले के तौर पर 29 अक्टूबर को मुस्लिम बंद और यौम सियाह मनाया जा रहा है। मुश्ताक मलिक ने वाज़ेह किया है कि कोई भी गैर मुस्लिम भाई को दुकान बंद करने या सियाह झंडा लगाने पर जोर नहीं दिया जाएगा। अगर रियासत के किसी भी बाजार में एक दुकान गैर मुस्लिम की हो और बाकी सारी दुकानात मुसलमानों की हो तो उस एक दुकान को भी बंद करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तेलंगाना मुस्लिम बंद व यौम सियाह के मौके पर किसी भी जुलूस, रैली या नारेबाजी की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने अमन व अमान की बरकरारी पर जोर दिया है और शर पसंदों पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत को भी वाज़ेह किया है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कहा कि अजला और शहर हैदराबाद के जिम्मेदारों को इलाकावारी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से ये बंद मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कामयाब रहेगा। जिले कोमराम भी आसिफाबाद के सिरपुर कागज नगर में मुस्तहिक अफराद ने डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने के लिए कागज नगर सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला को अर्जी पेश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीबों को मकानात फराहम करने के लिए साबिका हुकूमत ने कोमराम भी आसिफाबाद जिले के सिरपुर कागज नगर में डबल बेडरूम मकानात तामीर किए थे। म्यूनसिपल हुकाम ने रेवेन्यू ओहदेदारों के तालमेल के जरिए मुस्तहिकीन का इंतखाब भी किया था। बताया जाता है कि खुराअंदाजी की गई लेकिन गरीबों को मकानात नहीं दिए गए। खुराअंदाजी में मुंतखब होने वाले अफराद ने कागज नगर के सब कलेक्टर के दफ्तर से रुजू होते हुए एक अर्जी पेश की। सब कलेक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो सर्वे करवाने के बाद मुस्तहिक अफराद को मकानात फराहम करने के इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि जिन लोगों के नामों का ऐलान किया गया है उन्हें मकानात मख्तस किए जाएंगे। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान के राजू, अश्विनी, अनीश, फजील, ए पद्मा, एन संध्या, एम माधवी, प्रीता सिंह, शिवकाशी, लक्ष्मी और दलित संगम के सदर ए सुनील कुमार को दीगर मौजूद थे।
గౌరవనీయులు సబ్ కలెక్టర్ గారికి డబుల్ బెడ్రూమ్ బాధితులందరూ కూడా గతంలో లక్కీ డ్రా ద్వారా గౌరవ ఎమ్మెల్యే కోనేరు పూనప్ప గారి సమక్షంలో ఎవరైతే నిరుపేదలు ఉన్నారో వారికి స్వచ్ఛందంగా పబ్లిక్ మరియు వార్డు కౌన్సిలర్లు మరి అధికారుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ లక్కీ ద్వారా పొందిన 280 కుటుంబాలందరికీ న్యాయం జరగాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈ మధ్యలో మళ్ళీ రీసర్వే అనే వినబడంతో వీళ్ళందరూ కూడా అందరు భయాందోళనకు గురై మళ్ళీ రీసర్వే అంటే మళ్ళీ మస్తు రాదనే ఉద్దేశంతో అందరు భయాందోళనకు గురవుతోటి వీళ్ళందరినీ పట్టుకొని మరి సబ్ కలెక్టర్ గారికి ఒక విన్నపం చేసి टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने जगतियाल में कांग्रेस लीडर गंगा रेड्डी के कत्ल की शदीद मजम्मत की और पुलिस से इस वाक़े की तहकीकात करने मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। जगतियाल में कांग्रेस रहनुमा गंगा रेड्डी का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। गंगा रेड्डी एमएलसी जीवन रेड्डी के करीबी साथी थे। इस वाक़े का इल्म होने पर टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कत्ल की सियासत तेलंगाना की सखाफत नहीं है। वो जगतियाल में कांग्रेस लीडर गंगा रेड्डी के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने पुलिस से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करने और मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने वनापर्ती जिले के पेपेर म्यूनसिपालिटी के म्यूनसिपल कमिश्नर को 20,000 रुपये रिश्वत मांगने और कबूल करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि म्यूनसिपल कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अफसर गंडीकटला आदिशेषु ने मुबैना तौर पर साल 2023 में एक गुत्तेदार के जरिए किए गए सीसी रोड की पेंटिंग और रोड बिछाने के ठेके के काम के लिए रकम मंजूर करने के लिए रिश्वत मांगी थी। एसीबी हुकाम ने बताया है कि केमिकल टेस्ट में उसके दोनों हाथों और उंगलियों के मुस्बित नताइज सामने आए हैं और दफ्तर के एक टेबल के दराज से रिश्वत की रकम भी बरामद हो गई है। गंडीकटला आदिशेषु को गिरफ्तार करके एसपीई और एसीबी मामलों के फर्स्ट एडिशनल स्पेशल जज नामपली हैदराबाद के सामने पेश किया गया है। डीएससी उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों ने टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन के पास एहतजाज करते हुए बैकलॉग पोस्ट को ओपन कैटेगरी में तब्दील करने का मुतालबा किया। जराये ने बताया है कि डीएससी के पिछले 3 सालों में तकरीबन 666 बैकलॉग पोस्ट हैं। ख्वाहिशमंदों ने गांधी भवन के पास मुजाहरा करते हुए कांग्रेस हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो बिना नोटिफिकेशन जारी करे उन ओहदों को ओपन कैटेगरी में तब्दील कर दें। अगर हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम किया जाता है तो इससे उर्दू असातिज़ा को उन आसामियों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने और मेरिट की बुनियाद पर मुलाजिमत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। उम्मीदवारों ने यह भी बताया है कि डीएससी स्कूलों में उर्दू मीडियम असातिज़ा का फुक़दान है और हुकूमत को उन आसामियों को पुर करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेनी चाहिए। ఫ్రీ హెల్త్ ప్రొవైడ్ చేసి అందరూ సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు కానీ ఫ్రీ స్కూల్స్ లో ఎందుకు చదవడం లేదు పిల్లలు ఎందుకు చెప్పండి మీరు ఎందుకంటే అక్కడ టీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం లేదు మేము పుష్కర కాలం 12 ఏళ్ళుగా దీనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం చదువుతున్నాం తల్లిదండ్రులు భర్త పిల్లలు అందరూ ప్రోత్సహించి ఇంతవరకు తెచ్చిన ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకొని కూడా జాబ్ లేకపోతే మాకు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి రేవంత్ అన్న చెప్తున్నారు కదా మీ చెల్లెల ఆనందాలు చూడండి మా కోచ్లన్నీ బ్యాకప్ కోచ్లను ఓపెన్ కేటగిరీలో సపోర్ట్ చేసి మా కోచ్లు సెలెక్ట్ చేయాలి ఇదే డీఎస్సీలో ఇది జరగాలి 24 शादनगर आमंगल रूट पर आरटीसी बसों की तादाद घटा दी गई। तुलबा ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार को खत लिखकर बसों की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया। देही इलाकों से कस्बों तक बसें न चलने की वजह से तुलबा को परेशानियों का सामना है। कई इलाकों में तुलबा को फुट बोर्डिंग करते देखा जाता है। स्कूलों और कॉलेजेस को जाने के लिए वो अपनी जानें खतरे में डालने पर मजबूर हैं। शादनगर आमंगल रूट पर कम बसें चलने की वजह से तुलबा व तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार को एक मकतूब रवाना करते हुए बताया कि पहले शादनगर आमंगल रूट पर 10 बसें चलाई जाती थी, लेकिन अब 4 बसें ही चलती हैं, वो भी वक्त पर मैसर नहीं आती। 4 बसें तालिब इल्मों के लिए नाकाफी हैं। तुलबा ने सजनार से बसों की तादाद में इजाफा करने का मुतालबा किया है।
एक तालिब इल्म ने अपने मकतूब में ये कहा है कि आरटीसी बस पास की हद 35 किलोमीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन डिग्री कॉलेजेस बहुत दूर हैं, इसीलिए उस हद को बढ़ाकर 45 किलोमीटर किया जाना चाहिए। आरटीसी के एमडी से शादनगर महबूब नगर रूट पर भी पाले वेलम बसें चलाने की दरख्वास्त की गई है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आइन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि जमीयत आइंदा 3 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस आइन बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद करेगी। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी जद्दोजहद को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सदारत में एक बेंच ने मुख्तलिफ रियासतों खुसूसन उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मदारस के खिलाफ जारी किए गए तमाम नोटिसों पर रोक लगा दी। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि आइन के दफ़ा 25, 26 और 30(1) के तहत मुल्क के अक़लियती तालीमी इदारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इसकी तस्दीक कर दी है। ये भी कहा है कि इस हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि NCPCR के चेयरमैन के दिए गए बयानात और उनकी जानिब से किए जा रहे इक़दामात काबिले एतराज़ हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने हक़ाइक़ से आंखें बंद कर रखी हैं। अगर वो बैठकर इस मौजू पर बहस करेंगे तो यकीनन मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन उनका रवैया जारहाना और यकतरफा नजर आता है। मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि जमीयत तालीम के मैदान में मुसलसिल काम कर रही है और उनकी कोशिशों की वजह से बच्चे 10वें और 12वें नंबर पर हैं, और जबकि NCPCR के चेयरमैन जमीयत की कोशिशों की मुखालिफत कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने बताया कि मदरसे सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और मुआशरे की तालीमी तरक्की में भी रोल निभा रहे हैं। मजहबी मदारिस मुल्क के आइन के मुताबिक ही चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुल्क में मदरसों का निज़ाम पिछले 500 सालों से चल रहा है। मौलाना मदनी ने ये वाज़ेह किया है कि जद्दोजहद आगे भी जारी रहेगी। फ़िरक़ा वाराना ताक़त तारीख़ से नावाकिफ़ हैं और ये मदारिस ही हैं। जब पूरा मुल्क सो रहा था तब मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए सदाएं बुलंद की गई। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने कहा कि साजिश करने वालों को शिकस्त देने और आइन को बचाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। अगर उनकी साजिश कामयाब हो गई तो आइन ख़त्म हो जाएगा और उसकी हैसियत बेमाना किताब की तरह हो जाएगी। आखिर में मौलाना मदनी ने कहा है कि मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी और इसलिए कि आइन बचेगा तभी तो मुल्क बचेगा। और अपने इस नज़रिए की तकमील के लिए जमीयत उलमा हिंद आइंदा 3 नवंबर को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आइन बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद करेगी। देखिए, हम तो मुल्क के अंदर फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत के बढ़ावे को देख रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को हमने पकड़ रखा है आज से नहीं बल्कि 100 साल से जमीयत उलमा ने पकड़ रखा है, वो चाहे फ़िरक़ा परस्ती मुसलमान की तरफ से हो या हिंदू की तरफ से हो, हम उसके मुखालिफ हैं और हमने इसको मजबूती से पकड़ रखा है। इस वक्त फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत मुल्क के अंदर अक़लियत और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ जिस तरह चल रही है और काम कर रही है, ये वो चीज़ है जो मुल्क के सेकुलर मिजाज और सेकुलर दस्तूर को आग लगाने वाली चीज़ है। हम उसके ख़िलाफ़ हर मैदान के अंदर खड़े होते हैं, ज़बान से भी कहते हैं कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा, और हम कानून के दायरे में रहते हुए बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर उतरे, हम नहीं उतरते। हमारा इख्तिलाफ जनता से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ गवर्नमेंट से है। इसलिए हम उसके बुनियाद पर हमारा दस्तूर यह है कि हम कोर्ट के अंदर जाते हैं। हम अभी चंद दिन पहले हमारा दस्तूर ही की हमने आवाज़ लगाई थी और इस बुनियाद के ऊपर तकरीबन 80 लाख मुसलमानों को मुल्क के अंदर इज्जत व आबरू के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला आसाम के अंदर। आज की सूरत हाल ये है कि हमारे मदारिस
मुसलमान ही के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए बड़ी बुनियादी चीज है। जब 1857 के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर 32,000 मुसलमानों को फांसी दे करके लाल किले से लेकर के और जामे मस्जिद तक जितने दरख्त हैं इन पर लटका दिया गया था, कोई मुसलमान मिलता नहीं था, तो ये सवाल पैदा हुआ कि किस तरह आगे बढ़ कर के मुल्क की आज़ादी के लिए अब अफराद लोग कहाँ से पैदा किए जाएं। जो लोग जाहिल हैं वो नहीं समझते कि मदरसे की माँ ये मदरसा है जो आज देवबंद के अंदर है। ये 57 में गद अंग्रेज के खिलाफ बर्बादी में कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खवातीन में सालार सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन अवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने चंचलगुड़ा में जीएचएमसी कम्युनिटी हॉल में 50 खवातीन में मुफ्त सालार सिलाई मशीनें तकसीम की। इस मौके पर एसएम अबरार, नुमाइंदा कॉरपोरेटर आजमपुरा डिवीजन, AIMIM वुमेन इंचार्ज नाजिमा के अलावा चंचलगुड़ा के मुकामी अफराद, इस्तिफादा कुनिंदगान, मजलिस के सीनियर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। वॉक्सन यूनिवर्सिटी के तलबा ने तेलंगाना फाइनेंस कमीशन का दौरा किया। ज़राए ने बताया है कि वॉक्सन यूनिवर्सिटी के तलबा पर मुश्तमिल एक वफ्द तेलंगाना फाइनेंस कमीशन पहुंचा, जहां पर तलबा ने रेवेन्यू जनरेशन, SDGs और हर गांव में लोकल गवर्नेंस और नॉलेज सेंटर से जुड़ने से मुताल्लिक़ ख़यालात का इजहार किया और तफसीलात भी हासिल की। बाद-अज़ां तलबा के वफ्द ने सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल से भी मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की है। खलीज बंगाल में बनने वाला कम दबाव समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है। समंदरी तूफान के इंतबाह के बाद माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया जाता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि समंदरी तूफान 25 अक्टूबर तक शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। दाना नामी तूफान का मरकज पारादीप से 730 किलोमीटर बताया गया है। दाना तूफान के असर की वजह से रियासत आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश होगी। शुमाली साहिली इलाकों में भी 3 दिन तक यानी 23, 24 और 25 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जताया गया है। 100 था 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। माहीगीरों को समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है और माहिरीन ने ये पेशकशी की है कि समंदरी तूफान आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल के दरमियान कहीं भी साहिल को अबूर कर सकता है। IMD ने लोगों को मोहतात रहने को कहा है क्योंकि समंदरी तूफान दाना की वजह से मूसलाधार बारिश होगी, बर्क़ी की सरबराही में खलल पड़ेगा और लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान है। আগামীকাল বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া সাইক্লোনের জন্য আপনাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের জরুরি জিনিসপত্র, পশু পাখি নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবেন এবং মাঝি ভাইদের জানানো যাচ্ছে যে আপনারা সমুদ্রে নামবেন না বৃহস্পতিবার অবধি এবং আপনাদের চেনা পরিচিত জেলেদেরও পাড়ে ফেরার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দয়া করে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার সমুদ্রে কেউ নামবেন না। ধন্যবাদ স্বরূপ ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী, ফেজারগঞ্জ। गोशा महल के बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह ने सिकंदराबाद में मुतियालम्मा मंदिर का दौरा किया। सिकंदराबाद के मुतियालम्मा मंदिर में मूर्ति की तोड़फोड़ के वाक़े ने रियासत भर में सनसनी पैदा कर दी है। घर पर नज़रबंद रहने के बाद आखिरकार बीजेपी MLA राजा सिंह मंगल को सिकंदराबाद मुतियालम्मा मंदिर पहुंचे। इस मौके पर पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजाम किए गए थे। राजा सिंह ने मंदिर में मूर्ति की तोड़फोड़ से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और इंतज़ामिया से मूर्ति की दोबारा तनसीब के कामों के बारे में भी पूछताछ की। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।